Morning, dear students. Today I am here to discuss about the topic properties of the metals of class 10, chapter number 9, metal and non-metal. I told you about the physical properties of metal and one chemical property also I told you about that what happens when metals react with oxygen. Right? So what happens when metal reacts with oxygen? They forms the metal oxides. Now, what is the next topic? We can say reaction with water. What happens when metals reacts with the water? क्या होगा जब metals जो है वो water के साथ react? तो जब metal water के साथ react होगी, they forms the metal oxide plus hydrogen gas will release. And again, if it is metal oxide can dissolves in water, then it will forms the metal hydroxide plus oxygen. कि अगर मान लीजिए मेटल के अंदर हमने वाटर डाला, then metal oxide and oxygen हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म. मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म. अगर वो मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो इट विल बी डिसॉल्व इन वाटर एंड इट फॉर्म्स द अगेन मेटल हाइड्रोक्साइड. तो अल्टीमेट प्रोडक्ट्स क्या आ जाएंगे आपके? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. ये तब आएंगे जब आपकी मेटल ऑक्साइड्स डिसॉल्व्ड इन वाटर. कई मेटल्स जो है वो उनके ऑक्साइड्स जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, तो उसमें हम सिंपली वी कैन राइट मेटल ऑक्साइड. So first example मैं ले लूँ पोटेशियम का. K is the potassium H2O liquid, KOH plus H2O. This is the potassium hydroxide. This is in aqueous state. Hydrogen gas and lot of heat is released. तो see sodium and potassium they are very much reactive metals. कि इनके साथ कोई भी चीज रिएक्ट होती है, चाहे वो ऑक्सीजन रिएक्ट हो रही है, चाहे वो आपका वाटर रिएक्ट हो रहा है, तो दे स्टार्ट बर्निंग. इसमें आग के अंदर ही इसके मतलब पानी के अंदर ही अगर सोडियम है तो उसमें आग निकलना शुरू हो जाएगी. पानी के ऊपर ही आपको लगेगा कि फायर चल रही है. So it is the very violent reaction, exothermic reaction. Lot of heat is also produced. वो आगे लग जाती है, सोडियम बर्न करने लग जाता है. Potassium also. So sodium plus H2O gives you NaOH plus aqueous plus H2O. Again, heat is lot of heat is released. So we can say sodium and potassium reacts violently with the cold water. Violently react करता है with the cold water. Cold water के साथ simply they can react. उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बच्चे कैल्शियम. कैल्शियम कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. कैल्शियम भी है बट वो इतनी वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता. दे विल नॉट रिलीज द हीट लॉट ऑफ. जिनमें दोनों ये आपके वायलेंटली रिएक्ट करते हैं. दिस कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द सिंपली कोल्ड वाटर एंड इट फॉर्म्स द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. राइट. उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम जो है आपका दैट इज कैन नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, ये आपका हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता. कोल्ड वाटर के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होता. तो मैग्नीशियम प्लस H2O लिक्विड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस प्लस H2O, ये हॉट वाटर. अब जो मैग्नीशियम है इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द स्टीम. स्टीम जो है वाटर की गैसियस फॉर्म में है, उसमें ये आपका डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है. उसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अगर मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. Magnesium is reactive with the steam, that is the H2O in the gaseous form I have written here, then magnesium oxide plus hydrogen gas will be formed, and these oxides are in the solid state. If you are talking about the hydroxide, see I have written the aqueous here and in front of the oxide I have written the solid here, so just keep in mind all these, right? And what is the next? Aluminium. Aluminium can react with the steam only, that cannot react with the hot water, cold water. Rest of the metals like aluminium, zinc, iron, they do not react with the cold water as well as the hot water. They can only react with the steam, that is the water in the gaseous form. So aluminium plus H2O gas, Al2O3 aluminium oxide plus solid gives you H2 hydrogen gas. Iron Fe plus H2O gas. This is the steam symbol we can write, and here the product will be formed Fe3O4 iron oxide. Fe3O4, just keep in mind. Student can also write Fe2O3, that will be the wrong. The product will be Fe3O4 iron oxide plus hydrogen gas will be released. In this I can write the one more example also, zinc. Zinc can also react with the steam. जो जिंक है बच्चा, जिंक भी वो स्टीम के साथ ही रिएक्ट होती है. दैट यू कैन आल्सो सी द रिएक्शन Zn solid plus H2O gas. When I am writing the gas here, what does this mean? This is the steam we are taking. So ZnO solid plus
H2. Just try, always try to write the state symbol with your formula. ठीक है, हमेशा state symbols लिखने के लिए ट्राई करा करो कि आपको लर्न हो, जितना आप बार बार लिखोगे लिखोगे प्रैक्टिस आपको ऑटोमेटिकली होती है. So zinc can also react with the gas, steam. It cannot react with the cold water as well as the hot water. So these are the reactions of the metal with the reactivity of all the metals, whether it is react with the cold water, hot water, steam, and the copper, silver, gold. They do not react with the steam, with the not even cold, hot water. Okay, they are the very least reactant. Gold and silver. They do not react with the steam. They do not react with the cold water, hot water, with anything they cannot react. Right? And sodium and potassium, when we are saying they can react violently with the water. So they are so much reactive metal that we cannot store in the lab. जो एयर ऑक्सीजन में भी रिएक्ट कर जाएगी, एयर में वाटर का मॉइस्चर आएगा उसमें उसमें बर्न हो जाएगी. तो हाउ कैन बी स्टोर पोटेशियम एंड सोडियम? दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल दैट वी कैन स्टोर इन द कैरोसिन ऑयल. हम उसे कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, these to prevent their reaction, to prevent their reaction with the oxygen and water. उसका ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन ना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड. रिएक्शन विद द डाइल्यूट. अब रिएक्शन विद द डाइल्यूट एसिड्स में व्हाट वी कैन से, जैसे हम पढ़ चुके हैं, मेटल्स जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं दे रिलीज द सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं. इसमें सबसे पहले हम कोई एग्जांपल लेंगे. Na प्लस HCl gives you NaCl प्लस सॉल्ट प्लस हमारा वाटर बन गया. और वी कैन राइट ऑल्सो, और एग्जांपल ले सकते हैं Mg प्लस HCl gives you MgCl2 plus H2. अब I have not written the state symbol here. मैंने यहाँ पे state symbol नहीं लिखे. तो अगर मैं लिखना चाहती हूँ तो sodium is the solid. This is in the aqueous state. Again this is in the aqueous state and this is in the gaseous state. Try to write the symbols by yourself so that you can learn all these. So sodium, potassium, we know that when the metals react with the acids, they release the hydrogen gas. Aluminium can also react, zinc can also react, iron can also react. So generally all metals can react with the hydrochloric acid. I can write the more examples. Zn plus HCl gives you ZnCl2 plus H. I can write the example for aluminium also. We can write so many examples if you. All metals can react with the HCl. They react with the HCl forms the salt plus hydrogen. This is the compound. Now next is what happens when metals react with the sulfuric acid. What happens when metals react with the sulfuric acid? Sulfuric acid is the H2SO4. अब यहाँ पे अगर ये मान लीजिए आपकी H2SO4, right? तो यहाँ पे अगर ये H2SO, what will be the formula? The same hydrogen gas will be released and the formula will be here sodium sulfate Na2SO4, and with the same like this H2SO4, magnesium when react with MgSO4, so the formula will be MgSO4. That because magnesium valency is 2 and sulfate is also, that is why I have written here this. And zinc also you can write, aluminium also you can write there like this H2SO4. The formula will be ZnSO4 plus H2. So we can write simply like this कि when the metals react with the sulfuric acid, again the salt plus hydrogen gas will release. And what about the nitric acid? When the nitric acid, the reactions come. If we are talking about the nitric acid, dilute nitric acid, metals can react with the dilute nitric acid, but they do not release the hydrogen gas. वो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करते नाइट्रिक एसिड के साथ. तो व्हाट इज द रीजन कि क्यों नहीं मेटल्स जो हैं जब वो हाइड्रो नाइट्रिक एसिड के साथ व्हाई दे डोंट रिलीज द हाइड्रोजन गैस. So hydrogen gas is not evolved when the metals reacts with the dilute nitric acid. This is because nitric acid HNO3 it is a good oxidizing agent. ये एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो जो हाइड्रोजन गैस रिलीज, अब मैंने आपको बोला इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो HNO3 का ये फॉर्मूला, दिस इज द HNO3.
इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दे प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन। अब मान लो इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज, राइट, अब इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर दिया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या बना देते हैं, वाटर। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर हमारा बना देते हैं वाटर। और ये खुद क्या होता है, नाइट्रिक एसिड, ये रिड्यूस हो जाता है कि अगर जैसे हम मान लीजिए ये आपका HNO3 है, तो ये खुद इसमें रिड्यूस होके N2O, NO, NO2, इट डिपेंड्स, ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। अब देखो हाइड्रोजन में ये प्रोसेस जो हुआ, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो ये क्या चीज हो रहा है, रिड्यूस। कि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग होने की वजह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हाइड्रोजन जो रिलीज होती है उसके साथ पहले रिएक्ट करके वाटर बना देता है। तो जो खुद बच जाता है, जब उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया N2 NO2, खुद वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन तो रिमूव होगी लेकिन वो रिमूव होकर कहाँ चलेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, और खुद इसने N2O, NO, NO2 डिपेंड्स आगे क्या कंपाउंड हम ले रहे हैं उस हिसाब से खुद नाइट्रिक एसिड जो है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ टू मेटल्स दे कैन आल्सो रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। जो आपकी दो मेटल्स के साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है, वो कौन सी दो मेटल्स हैं जिसके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज करता है, वो है आपकी मैग्नीशियम, वेरी डेल्यू। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मैग्नीशियम प्लस HNO3, ठीक है। अब यहाँ पे ये बनेगा आपका MgNO3 प्लस H, बहुत ही ज्यादा वेरी डेल्यूट सोल्यूशन, ठीक है, वेरी डेल्यूट। अब दूसरा इसमें मैंने आपको बताया बच्चे मैग्नीज, मैग्नीज एक मेटल होती है Mn प्लस HNO3 gives you MnNO3 2 plus H. अब now how can I write sodium aqueous aqueous gas, ठीक है। तो these are the equation for this कि मैग्नीज और आपका मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ इन दो के साथ नाइट्रिक एसिड कैन रिलीज द हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि जो आपकी सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, these metals silver gold platinum these metal do not react with the oxygen water, तो ये किसके साथ रिएक्ट होती है, ये किसी न किसी में तो इसीलिए हम डिसॉल्व करेंगे। तो एक न्यू यहाँ पे मैं आपको टर्म बताने जा रही हूँ जिसका नाम है एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया, एक्वा रिजिया क्या है, इट इज द सॉल्यूशन, वी कैन से एक्वा, इट इज द रॉयल वाटर, ये लैटिन टर्म है जिसका मीनिंग होता है रॉयल वाटर। अब रॉयल वाटर जो है ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म बाय द 3 पार्ट्स ऑफ HCl प्लस 1 पार्ट ऑफ HNO। ये 3 पार्ट इसमें HCl के लिए जाते हैं और एक पार्ट इसमें HNO3 का लिया जाता है, एंड इट इज हाईली कोरोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड, and this is used for the dissolving the metals like gold and platinum which are very least, वो किसी की भी एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। गोल्ड एंड सिल्वर जो है इस डाइल्यूट एसिड के साथ नहीं रिएक्ट करते, कंसंट्रेटेड के साथ भी वह नहीं करते। तो इसका ये 3 पार्ट HCl and 1 part HNO3 is known as the aqua regia. Aqua regia is the Latin word which means the royal water, and it can dissolve the gold, silver, platinum metal in this solution. कि सिर्फ इसके अंदर वो गोल्ड और प्लैटिनम की जो मेटल है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो सकती है, राइट। सो गोल्ड एंड प्लैटिनम दूसरों किसी के भी, अगर मैं बोलूं अकेले HCl के साथ डिसॉल्व करूं तो नहीं होगी, मैं बोलूंगा कि अकेले HNO3 के साथ करूं नहीं होगी। इन दोनों का रेशियो, वो भी 3:1 एंड बोथ आर द कंसंट्रेटेड, और दोनों जो है आपके वो कंसंट्रेटेड होंगे, देन ओनली इट कैन रिएक्ट विद लाइक दिस, राइट, एक्वा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ऑल।